Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about the various endocrine glands like hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, parathyroid gland, adrenal gland, testes, ovary and others. But today I will going to discuss about a detail of the pituitary gland and hypothalamus. What is the situation of the hypothalamus and as well as the pituitary gland? Where is located of that type of gland and what type of hormones secreted by the glands and what is the function of their hormones in our body? तो बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो ग्लैंड का कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है और उसके अंदर पर्टिकुलर 1 by 1 ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड उसके हार्मोन का हम यहाँ पर फंक्शन की बात करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड सीक्रेट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड दैट टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल और रेगुलेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो इन सब फंक्शन को हम बच्चों आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस एक्चुअल में क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो आइए बच्चों आप इस स्क्रीन के ऊपर अटेंशन के साथ में बने रहिएगा और बहुत अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी बनाइए और बहुत अच्छे यहाँ पर वो अपना नॉलेज को बिल्डअप करने का प्रयास कीजिए जो हमारी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। तो हम बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, आज फर्स्ट जो ग्लैंड लेते हैं वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हाइपोथैलेमस इज ए कनेक्टिंग लिंक, पहले भी आपको बताया था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड endocrine system. Hypothalamus is a part of the forebrain, like in the forebrain the part of the diencephalon part. We have already discussed about the diencephalon part in the nervous system. The diencephalon part also formed by 3 type of structure. First is epithalamus, second is thalamus and third is hypothalamus. The hypothalamus form a floor of the diencephalon. It is a very important part that is a function as a nervous system and as well as a control of the endocrine system, so called the connecting link between the nervous system and endocrine system. The various type of hormone secreted by the hypothalamus, mainly there are 2 type of hormone secreted by the hypothalamus. First is a releasing factor or releasing hormone, second is a inhibitory hormone. 6 type of hormone is the releasing factor and 3 type of hormone is inhibitory type of factor. So the total number of hormones secreted by the hypothalamus are 9. It is very important हार्मोन। तो आप देखिएगा हाइपोथैलेमस it is also known as the master of a master gland due to the pituitary gland is a master gland. The pituitary gland control of several type of gland of our body, but the hypothalamus control regulate of the pituitary gland, so called master of master gland or principal gland of our body. तो यहाँ बच्चों यहाँ देखा गया है, यहाँ जो लिखा गया है, for many years past the pituitary gland or hypophysis, pituitary gland also known as the hypophysis, was called the master gland, master endocrine gland. It is very important question. ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि master endocrine gland is, तो आंसर होगा pituitary gland, because it secretes several hormones that control other endocrine glands. We now know that the pituitary gland itself has a master, the hypothalamus. Then
this small region of the brain below the thalamus is the major link between the nervous system and endocrine system, so called the connecting link between nervous system and endocrine system. Cell in the hypothalamus synthesize at least 9 different type of hormone, and the pituitary gland secrete the 7 type of हार्मोन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए बच्चों। ये एक आपके सामने एनिमेशन दिखाया गया है जिसमें पूरा एक ब्रेन फॉर ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे रेड कलर के अंदर जो बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई है, ये यहाँ हाइपोथैलेमस का राइट पार्ट है और हाइपोथैलेमस का यहाँ पर लेफ्ट पार्ट है। यहाँ तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस फॉर्म बाय मेनी न्यूरोसेक्रेटरी सेल, दैट टाइप ऑफ सेल सीक्रेट सेवरल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। तो इसकी बच्चों यहाँ हम बात कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ टुगेदर these hormone play a important role in the regulation of the virtually all aspect growth, development, metabolism and homeostasis। virtually many ऑल एस्पेक्ट से यहाँ कंट्रोल कर रही है बच्चों हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन क्या क्या है यहाँ पर? फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज डेवलपमेंट रेगुलेटेड बाय दैट टाइप ऑफ हार्मोन, देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म एंड नेक्स्ट इज होमियोस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी, उसको हम यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ तो ये बच्चों यहाँ आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ कौन कौन से हार्मोन कैसे रिलीज होती हैं, क्या कौन सी सेल यहाँ पर होती है, तो हम इन हार्मोन की बात करेंगे यहाँ एक अलग स्लाइड के द्वारा। यहाँ देखिएगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन की स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन की हम बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज करता है, किस टाइप के हार्मोन यहाँ पर आते हैं। तो देखिएगा सम हार्मोन secrete into adenohypophysis ऑफ ए पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ हार्मोन तो यहाँ पर बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग में ही रिलीज होंगे और कुछ हार्मोन यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग में यहाँ पर रिलीज होंगे। हाइपोथैलेमस का जो रीजन हमने देखा था, देखिएगा एक सिंपली तौर पे मैं यह बताने का प्रयास करूं मैं कि ये डाइनसिपिलॉन पार्ट है, ये एक एरिया बना रहा हूं, ये एक मैंने स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर का अपर पार्ट है वो यहां पर है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस मैंने कहा था रूफ ऑफ द डाइनसिपिलॉन। सेंटर का जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे थैलेमस। Then floor of the diencephalon, it is called hypothalamus. In the hypothalamus, many type of center found present that control many type of physiological activity like osmoregulatory center also found in the hypothalamus, thrust center and satiety center, hunger center, love center, head center. Those center are found in the hypothalamus and control many activity of our body. And many neurosecretory cell also found in the hypothalamus. That type of cell secrete two type of hormone, releasing hormone and inhibitory hormones. In the lower side of the hypothalamus attach a mother pea like structure that is called pituitary gland. Pituitary gland. ओके, इस टाइप से बच्चों यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलोबरेट करके यहाँ देखूं। पिट्यूटरी ग्लैंड इस प्रकार से एक स्टाल्क बनाते हुए यहाँ प्रेजेंट होती है और नीचे ऐसे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की यहाँ पर है। देन यहाँ पर ये अटैच है किसके साथ में? हाइपोथैलेमस में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों यहाँ पर हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर है। हाइपोथैलेमस, रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहां देखिएगा
that is the hypothalamus and that is the pituitary gland. Pituitary gland normally outer or external structure of the pituitary gland just like a pea granule like structure which is found in the sphenoid bone cavity of the sphenoid bone that is called the sella turcica cavity. ये हम आगे यहां पर करेंगे, लेकिन यह एक कनेक्शन आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में यहां पर 2 रीजन है। ये इस टाइप से यहां 2 रीजन है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और अपर साइड में यहां हाइपोथैलेमस रीजन है। यहां से मेनी न्यूरॉन है, मेनी न्यूरॉन यहां से डेवलप हो रहे हैं, और ये न्यूरॉन यहां इस टाइप से स्मॉल न्यूरॉन है, और वो न्यूरॉन न्यूरोसेक्रेटरी सेल हम कह सकते हैं वो बनाते हैं, और ये बना रहे हैं इस प्रकार से, ये यहां बना रहे हैं। ओके, अब यहां कुछ ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है वन पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, वन पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर यहां पर एंटर कर रही है ये, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर है। यहां पर एक हिस्सा इस प्रकार से बन गया। सेकंड टाइप आप देखिएगा हाइपोथैलेमस के अंदर जो स्ट्रक्चर यहां बनती है, यहां सब न्यूरोनल और स्ट्रक्चर यहां पर बन रही है, और ये न्यूरॉन यहां लॉन्ग होती हैं और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोड बनाते हैं, जिसे हेरिंग बॉडी भी कहते हैं अपन। इस प्रकार से दूसरा न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन एंटर करता है इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर। मैं यहां पर एक कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड साथ में कनेक्ट करते हुए बताने जा रहा हूं मैं। तो ये जो एरिया है पिट्यूटरी ग्लैंड का, द पिट्यूटरी ग्लैंड देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। फर्स्ट पोर्शन इज एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनो का मीनिंग है यहां पर सेलुलर एपिथेलियम टिश्यू, तो इट इज ए सेलुलर पार्ट। देयर आर फॉर्म बाय 3 टाइप ऑफ सेल, एसिडोफिल सेल, बेसोफिल सेल एंड क्रोमोफोब सेल। इसके डिटेल हम आगे करेंगे, केवल यह नाम ध्यान रखें। देन सेकंड पार्ट इज स्मॉल पार्ट विच इज फॉर्म बाय न्यूरॉन, so that is called neurohypophysis region। न्यूरोहाइपोफाइसिस रीजन। तो हमने यहां पर क्या देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। फर्स्ट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। या एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सम वेस्टिजियल लोब आल्सो फाउंड इन द मिडिल रीजन ऑफ बोथ लोब, that is called the middle lobe, middle lobe of the pituitary gland. But the middle lobe of pituitary gland is vestigial in human being, so the middle lobe merge into the adenohypophysis. Okay, ये एक जनरल बात आपको यहां पर समझने का प्रयास किया। बट अपर साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हमने a brain region, a special part of the diencephalon region, that is called a hypothalamus. The hypothalamus and pituitary gland connect with the stalk-like structure that is called infundibulum. Infundibulum. Okay, what do you mean about the infundibulum? You can see the infundibulum is a tubular structure, found in between the hypothalamus and the pituitary gland, which are connected to both structure. इन दोनों स्ट्रक्चर को बच्चों infundibulum यहां पर कनेक्ट कर रही है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इनसाइड ऑफ द हाइपोथैलेमस देखिएगा, या one half portion of the hypothalamus formed by neurosekretary cell, and another type of a half portion of hypothalamus also formed by the neuron or neurosecretory cells, but that type of neurosecretory cell found in only hypothalamus, but that type of neurosecretory cell found in the
neurohypophysis of the pituitary gland goes into the neurohypophysis of the pituitary gland. So long neuron found in the neurohypophysis part, but the short neuron found in the only hypothalamic part. But from that type of part, some blood vessels are origin and goes into the adenohypophysis region. That is called a hypophyseal portal vein. Hypophyseal पोर्टल वैन. ओके, अब यहां देखिएगा, ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल यहां पर सीक्रेट करती है. देयर आर टू टाइप ऑफ हार्मोन. वन इज आरएफ रिलीजिंग फैक्टर एंड सेकंड इज आईएफ इनहिबिटरी फैक्टर. रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर released by the hypothalamus, and that type of factors come into the adenohypophysis of the pituitary gland and activate many type of cell like acidophil cell. That region formed by acidophil cell, basophil cell and chromophobe cell. That type of RF and IF come into the adenohypophysis of pituitary gland and activate to the acidophil cell and basophil cell, and these cells secrete various type of hormone like GH hormone, ACTH hormone, FSH hormone, LH hormone, TSH hormone. These hormones secreted by the adenohypophysis part of the pituitary gland. तो ये बच्चों यहां पर इतनी बात आपकी समझ में आई. अकॉर्डिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, वी गिव नेम ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन व्हेन दैट हार्मोन इंड्यूस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, so called releasing factor. When the inhibit of the pituitary gland of the adenohypophysis region, that is called inhibitory factor. What type of releasing factor and what type of inhibitory factor found in the hypothalamus or secret of the hypothalamus for the adenohypophysis region? तो हम यहां पर बात करेंगे बच्चों, देखिएगा मेनी टाइप ऑफ हार्मोन. नेक्स्ट हम यहां पर देखें कौन कौन से ये हार्मोन हो सकते हैं. तो रिलीजिंग फैक्टर आरएफ फॉर रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन याद रखें. आईएफ फॉर इनहिबिटिंग फैक्टर, आईएफ फॉर इनहिबिटिंग फैक्टर. अब कौन कौन से यहां पर रिलीजिंग फैक्टर है, कौन कौन से यहां पर इनहिबिटरी फैक्टर है, तो तब देखिएगा यहां पर स्टेज जीएच, सेकेंड इज एसीटीएच, थर्ड इज टीएसएच, फोर्थ इज FSH, fifth is LH, then next is prolactin हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सॉरी लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, एंड नेक्स्ट इज MSH. MSH is secreted by the middle lobe of the pituitary gland, but in case of human being, the middle lobe is a vestigial region. It is merged into the adenohypophysis part. So that type of hormone is a adenohypophysis hormone. Okay, ये हार्मोन देखिएगा यहां पर
7 टाइप के हार्मोन, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ हार्मोन secreted by the pituitary gland hormone. The GH hormone regulate by the from the GHRH. Okay, GHRH is a hypothalamic hormone, but the GH is a pituitary gland hormone. इस GH को रेगुलेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? GHRH रेगुलेट करेगा, यहाँ पर एनहेंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा कौन? GHRH। जैसी बॉडी को GH की जरूरत होती है तो हाइपोथैलेमिक के पहले GHRH रिलीज करता है और वो यहाँ पर हाइपोबाइसिल पोर्टल वैन के द्वारा यहाँ पर आएगा पिट्यूटरी एडिनोहाइपोबाइसिस में और इसको एक्टिवेट करेगा, जिससे ये रिलीज होके फिर बॉडी के अंदर यहाँ ट्रांसफर होता है थ्रू ब्लड। देन ACTH, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन में यहाँ पर ACTHRH, देन TSH, TSHRH, देन FSH, FSHRH, देन LHRH, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन और PRH रिलीजिंग हार्मोन, MSHRH। ये 7 टाइप ऑफ हार्मोन है, वो रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन है। ये हार्मोन है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, ये हार्मोन है यहाँ पर हाइपोथैलेमस के हार्मोन। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलीज कर रही है। बात समझ में आ गई? इन हार्मोन का रेगुलेशन बच्चों फीडबैक कंट्रोल के अकॉर्डिंग होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग, जो अभी हम बात करेंगे आगे कि नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। यहां GHRH यहां रिलीज हुआ। अब देखिए, इसको यदि कंट्रोल करना है GH को, अब GH ज्यादा बन गया बॉडी के अंदर, तो इसे रेगुलेट करने के लिए फिर यहां GHIH रिलीज होगा, इनहिबिटरी फैक्टर RH और I, यहां RF को RH भी लिख सकते हैं और IF को IH भी लिख सकते हैं, याद रखना बच्चों। IF also we can say that RH is equal to RF, IF is equal to IH। ओके, यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं हम, यहां रेगुलेट करने के लिए क्या है? इनहिबिटरी IH, यहां इसी सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जानते हैं। तो RH GHRH को सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं यहां पर। इसी प्रकार IH बच्चों सबके नहीं है, इसका IH नहीं होता, इसका भी IH नहीं है, इसका भी IH नहीं है, इसका भी IH नहीं है। ये फीडबैक कंट्रोल के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। जबकि यहां PRH का PIH है, वुमन के अंदर PIH रेयर होता है। इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन करने वाला हार्मोन होता है वो डोपामीन हार्मोन होता है, ध्यान रखिए। Dopamine is a neurotransmitter which is secreted by dopaminergic neuron in the hypothalamus in the brain. The dopaminergic neuron or dopamine function just like a PIH in case of human being. In the human being, PIH also known as the dopamine hormone. And MSHRH इसको कंट्रोल करने के लिए MSHIH हार्मोन रिलीज होता है। अब देखिए बच्चों, IH की बात करें तो 6 टाइप के, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअल में 7 टाइप के, तो यहां पर क्या है? RH है प्लस 3 टाइप के यहां पर IH हार्मोन है। तो एक्चुअल में टोटल 10 टाइप के हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं। लेकिन
FSH RH और LH RH है, इसको हम GnRH भी कह सकते हैं। GnRH गोनेडोट्रोपिन RH, FSH RH and LH RH commonly known as the GnRH, इसलिए इसको केवल एक ही टाइप का रिलीजिंग हार्मोन मानते हैं यहाँ पर। इसलिए RH कितने हुए यहाँ पर 6RH हुए प्लस 3IH हुआ। इस केस में आपके पास में हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने टाइप के हुए, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेट इनटू द एडेनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड? आंसर होगा ओनली 9 टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट बाय द hypophyseal portal system, circulate by the hypophyseal portal system, which is regulate of the adenohypophysis of the pituitary gland. तो ये एक बच्चों यहाँ पर हम डिफरेंट हार्मोन के बारे में यहाँ समझिए कि ये हार्मोन किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, कैसे हार्मोन यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो आई होप यू आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक्स to all students. You have a clear knowledge about the topic. अब इसके बाद में आगे देखें हम यहाँ नेक्स्ट स्टेज हम देखें बच्चों कि कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से रिलीज होते हैं। तो एक स्लाइड के द्वारा जो आपके सामने मैटर रखा है उसको हम यहाँ पर देखें। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ न्यूरोसेक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस। व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन? These neurosecretory cells produce some substances in very small amount which are called releasing factors. Releasing factor meaning RF factors. Then, what type of RF? Growth releasing factor GHRF, growth hormone inhibiting factor तो आपके पास में GHRF, then GHIF. GHIF also known as the somatostatin hormone. The somatostatin hormone also secreted by various part of our body like stomach. In the stomach also secrete the somatostatin hormone by the pancreatic delta cells. Also secrete the somatostatin hormone. Thyrotropin releasing factor TRF और TSH-RF भी कर सकते हैं। Then gonadotropin hormone. Gonadotropin also divided into two parts. First is the FSH-RF, follicle stimulating hormone releasing factor. Then next हम देखें यहाँ पर तो luteinizing hormone. It is also second gonadotropin hormone. Prolactin releasing factor. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर ऑल्सो नोन एज डोपामाइन इन केस ऑफ ह्यूमन। ध्यान रखें ह्यूमन के अंदर इसे हम बच्चों क्या कहेंगे डोपामाइन के रूप में जानते हैं। ये बात हमने की। मेलेनोसाइट रिलीजिंग फैक्टर MRF which is secreted by the middle lobe of the pituitary gland in another type of animals, but in case of human the middle lobe merge into the adenohypophysis. That is very important question. So the adenohypophysis hormone MRF or MSH-RF and also regulated by the MIF melanocyte inhibiting hormone and CRH adrenocorticotropic releasing hormone. तो CRH या corticotropic releasing hormone also secreted by the adenohypophysis of the pituitary gland. What type of cell? तो basophil cell, it is the secret cell. Then next gland is a very important gland that is called pituitary gland. It is a most important gland in our body. It is a small gland in our body which is found in the forebrain of the diencephalon part. What is the location of the
gland? What is the structure of the gland? The outer structure of the pituitary gland, just like a pea granules. Where is located? A depression found inside of the lower side of the hypothalamus. Lower side of the hypothalamus, below the hypothalamus, found a special bone that is called sphenoid bone. Sphenoid bone have a depression, have a cavity-like structure that is called, that type of depression known as the sella turcica. The pea granule-like pituitary gland embedded into the sella turcica. It is very, very important. So we can say that it is a P-shaped. यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ये पूछा जाता है, the shape of the pituitary gland is a P-shaped structure that measure 1 to 1.5 centimeter in diameter and lie in the sella turcica. Sella turcica is a depression. It is a cavity of sphenoid bone. Cavity of the sphenoid bone. The sphenoid bone is a skull bone. Sphenoid bone is a skull bone. On the basis of development, the pituitary gland is a completely ectodermal. ये भी बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ नीट के अंदर इसे पूछा जा सकता है कि द कंप्लीटली पिट्यूटरी ग्लैंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी, तो आंसर होगा यहाँ पर एक्टोडर्मल ओरिजिन यहाँ पर है इन दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन. तो यहां इस डेवलपमेंट को हम यहां समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट, दिस ग्लैंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू ए स्टॉल्क विच इज कॉल्ड एज ए इन्फंडिबुलम. अभी हमने बात की थी, यहां ये हाइपोथैलेमस है और यहां पर ये इन्फंडिबुलम है और ये क्या है, यहां पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है. इसे हम क्या कहेंगे, इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम जनरली हम कह सकते हैं पी लाइक स्ट्रक्चर है. इसके चारों तरफ क्या है, यहां पर ये बोन है, इस बोन को हम कहेंगे स्पिनोइड बोन. स्पिनोइड बोन. और इन द स्पिनोइड बोन फाउंड ए डिप्रेशन और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, और इस कैविटी को हम कहेंगे यहां पर सेला ट्रसिका. सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं. और इन्फंडिबुलम, और ये ऊपर पार्ट है क्या, हाइपोथैलेमस. तो इस प्रकार की एक पोजीशन है पी, कह सकते हैं पी ग्रेन्यूल है, ये पी ग्रेन्यूल है ये. तो ऐसी पोजीशन को हम यहां पर दिखा सकते हैं कि ब्रेन के अंदर ये ग्लैंड है, और छोटी सी ग्लैंड है लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है ये ग्लैंड है, इसलिए दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. और ऑर्केस्ट्रा लीडर के नाम से भी जानते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड, आल्सो नोन एज द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड आल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. तो ये यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. द अपर सरफेस ऑफ द रात पाउच इज डेवलप इनटू द एडेनोहाइपोफाइसिस. ध्यान रखिएगा, द पिट्यूटरी ग्लैंड इन वेरियस एनिमल divided into 3 lobes: anterior lobe, second is a middle lobe, and third is a posterior lobe. Posterior lobe. There are 3 lobes found in the pituitary gland in the various animals, but in case of human, the middle lobe is vestigial. Middle lobe is vestigial. ध्यान रखें बच्चों. And the vestigial lobe merge into the anterior lobe. That type of lobe merge into the anterior lobe. So in the human, there are only 2 lobes
two pituitary lobes are found. First is anterior lobe and second is posterior lobe. Anterior lobe also known as adenohypophysis part and posterior lobe also known as neurohypophysis region. Adenohypophysis and neurohypophysis. There are only two type of lobe found in human being. इस चीज को बच्चों यहां पर ध्यान रखें. अब देखो एडिनोहाइपोफाइसिस का ओरिजिन कैसे हुआ. ओरिजिन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस देखें हमें. ओरिजिन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस इन दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन. तो टोटली ग्लैंड है, उसका ओरिजिन मैं कह रहा हूं एक्टोडर्मल है. अब आप देखिएगा एक्टोडर्मल ओरिजिन है, बात आपकी समझ में आ गई. इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यहां पर जब फेरिंजियल रीजन बनता है, फेरिंग्स ऑफ आवर बॉडी, ये जो फेरिंग्स का फॉर्मेशन होगा, ये हमारे अंदर जैसे यहाँ फेरिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे फेरिंग्स का रीजन है. हम डाइजेशन पढ़ा था तो वहां पर बताया कि ये जो फेरिंग्स बन रहा है, द अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स फॉर्म ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर or the dorsal region of the pharynx form a pouch like structure in the embryonic condition. That pouch is called Rathke pouch, Rathke's pouch, and Rathke pouch go up into the brain. ये पाउच यहां पर अलग होके यहां छोटी स्ट्रक्चर बना लेती है और come into the brain in embryonic condition and situated into the sella turcica cavity of the sphenoid bone. That is called adenohypophysis. Adenohypophysis of pituitary gland. And second part of the pituitary gland is called neurohypophysis, which is formed by the neuron or neurosecretory cell of the hypothalamus. The outgrowth of that type of neuron situated near the hypothalamus and form a part of the pituitary gland that is called neurohypophysis part. तो एडिनोहाइपोफाइसिस बच्चों यहां पर किसी हुआ, रात के पाउच है, वो पाउच कहां से डेवलप हुए, फेरिंग्स भाग से, फेरिंग्स पार्ट से यहां पर ये पाउच है वो डेवलप हुए और डेवलप होके यहां पर अपर साइड में वो या एक्सटेंशन हुआ. इसका एक्सटेंशन होने से या स्पिनोइड बोन के ऊपर जाके ये फिक्स हो गए ये पाउच और फॉर्म किया इन्होंने एक ग्लैंड का. इस ग्लैंड को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और उसका एक मेजर पार्ट है, 3-4 पार्ट फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन. ये यहां आप बहुत अच्छी तरह, आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द चैप्टर. देन adenohypophysis is also formed by many parts. First is pars distalis, pars tuberalis and pars intermedia. Intermedia is a middle lobe of the pituitary gland, are collectively known as the adenohypophysis. And neurohypophysis and adenohypophysis is called the hypophyseal cerebri or the pituitary gland. तो यहां हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड थी, इसके दो रीजन थे. एक रीजन को हमने कहा एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरे रीजन को हमने कहा न्यूरोहाइपोफाइसिस. ओके, एडिनोहाइपोफाइसिस ऑल्सो formed by 3 structure: pars distalis, pars
ट्यूबरेलिस और पारस मीडिया इंटरमीडिया। Pars intermedia is a part of the middle lobe of the pituitary gland. It is merged into the pars distalis. So the adenohypophysis in case of human formed by two type of parts. First is the pars distalis and pars tuberalis. The main part of the pituitary gland is pars distalis. The pars distalis also known as the only adenohypophysis region. Pars distalis, it is a main region of the pituitary gland. तो ये बच्चों यहां पर समझ में आई यहां पर बात। न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन है, इसमें कोई अलग रीजन नहीं होता, ओनली न्यूरॉन इसका ओरिजिन होता है न्यूरल एक्टोड्रम से और इसकी रीजन को हम पारस नर्वोसा also known as the neurohypophysis of the pituitary gland, also called pars nervosa. It is the main part of the posterior pituitary gland. इस बात को बच्चों यहां पर आप समझ गए होंगे कि पारस नर्वोसा क्या है। देन ये बच्चों आपके सामने यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम लिया है जिसमें वेरियस पार्ट यहां दिखाए गए हैं। यहां एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें ऊपर की साइड में यहाँ हाइपोथैलेमस दिखाया है, फिर इसके बीच में यहां पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिखाए हैं। ये एडेनोहाइपोफाइसिस में जाने वाले न्यूरॉन है और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाने वाले न्यूरॉन है। एडेनोहाइपोफाइसिस के न्यूरॉन शॉर्ट होते हैं जो अपना सीक्रेशन कहां डालते हैं, हाइपोपोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में वहां डाल देते हैं और ये यहां पर कलेक्ट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, यहां कलेक्ट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। कहानी समझ में आई आपके? इसको मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। हमारे पास में क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास में हाइपोथैलेमस है। ओके, अब इस हाइपोथैलेमस से यहां पर क्या अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे पास में क्या है, हाइपोथैलेमस है। सिंपली तरीके से मैं यहां बताने का प्रयास करूं, इसके बीच में यहां पर एक बैरियर बता सकता हूं। यहां पर दो पार्ट हो सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये एक लार्ज पार्ट है, इस लार्ज पार्ट को हम कहेंगे एडेनोहाइपोफाइसिस। इस पार्ट को हम कहेंगे यहां पर न्यूरोहाइपोफाइसिस। Neurohypophysis also known as pars nervosa, which is formed by only neuron. यहां से केवल न्यूरॉन इसके अंदर से निकलते हैं, यहां से न्यूरॉन आते हैं, ये न्यूरॉन का पार्ट है। ये न्यूरॉन इस प्रकार से आया और ये न्यूरॉन यहां पर है, अनेक ब्रांचें बनाते हैं, इस प्रकार के नोड बनाता है। ये नोड बनाता है, इन नोड को कहेंगे हेरिंग बॉडीज। इस हेरिंग बॉडीज में हार्मोन को स्टोर किया जाता है। तो कंप्लीटली ये न्यूरॉन से बना हुआ भाग है, ध्यान रखिए। सेकंड है एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस में मेन जो रीजन है, इस रीजन को अपन कहेंगे पारस डिस्टेलिस। पारस डिस्टेलिस और ऊपर की तरफ जो थोड़ा ट्यूब्यूल रूपी रीजन है यहां पर, इसको हम कहेंगे पारस ट्यूबरेलिस। और जो मिडिल पार्ट है ये यहां मर्ज हो जाता है, यहां पर मीडियन पार्ट है, ये मर्ज हो गया इन द एडेनोहाइपोफाइसिस, इसको हम कहेंगे मिडिल रीजन। बट यहां पर वेस्टिजियल है, यहां पर ध्यान रखिए, उनके अंदर मिडिल रीजन है वो वेस्टिजियल है।
तो पारस डिस्टालिस इज ए मेन पार्ट ऑफ द एडेनोहाइपोफाइसिस and pars tubularis is a tubular part, but in between the hypothalamus and pituitary gland found a stalk-like structure that is called infundibulum. Infundibulum is a part of the neurohypophysis region. इतनी बात आपकी समझ में आ गई यहां पर। इसके अंदर बच्चों यहां पर एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनो मीन सेलुलर पार्ट है, यहां पर सेल प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज की सेल प्रेजेंट है यहाँ इसके अंदर। इस प्रकार से एक सेलुलर रीजन है, सेल प्रेजेंट है। ये सेल कई प्रकार की हो सकती है, एसिडोफिल सेल, एसिडोफिल सेल, कुछ सेल होती है बेसोफिल, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग नेचर बेसोफिल, कुछ सेल होती है यहां पर क्रोमोफोब, क्रोमोफोब सेल, या दैट 3 type of cell found in the adenohypophysis region. First is acidophil cell, second is basophil cell, third is chromophobe cells are found in the adenohypophysis region. ये यहां पर बच्चों यहां प्रेजेंट है। इस बात को आप समझ गए होंगे। यहां से आप देखोगे इस रीजन से कुछ ब्लड वेसल्स यहां एंटर कर रही है, जो यहां आ रही है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स जो यहां दिखाई गई है, देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ये यहां एंटर कर रही है। इसमें हाइपोथैलेमस से ये ब्लड वेसल्स आ रही है। ये ब्लड वेसल्स किसकी ब्लड वेसल्स है? इसको हम कहेंगे पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कनेक्ट टू दी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्लड वेसल से क्या करेगी? हाइपोथैलेमस से रिलीज जो हार्मोन है, यहां पर कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, न्यूरॉन प्रेजेंट है बच्चों, छोटे न्यूरॉन प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये छोटे न्यूरॉन प्रेजेंट है और ये ओवन सीक्रेशन है, वो यहां पर किसके अंदर दे देगी? इसे के अंदर यहां ट्रांसफर कर देगी, जिससे ये सीक्रेशन जो आ जाएगा वो यहां एडेनोहाइपोफाइसिस में ये सीक्रेशन आ जाएगा। क्या रिलीज करती है? या तो आरएफ रिलीज करती है या आईएफ रिलीज करती है। आरएफ सीक्रेट करेगी और आईएफ यहां पर सीक्रेट करेगी। इस टाइप के बच्चों यहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को आप अब मैं होप कर सकता हूं कि यू हैव ए क्लियर नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट द हाइपोथैलेमस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन कहां से हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और क्या इसकी एक स्ट्रक्चर होती है और कौन सी इसके अंदर सेल्स यहां पर पाई जाती है। ये एक रीजन है यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसे हम इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट एक डायग्राम और बताया है यहां पर, इस डायग्राम के द्वारा भी हम यहां समझ सकते हैं। ये एक रीजन है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहां एक पार्ट है, ये एक रीजन है, दूसरा रीजन इधर साइड में दिखाया गया है। इस रीजन में न्यूरॉन डायरेक्ट एंटर कर रहे हैं यहां, और मीडियन एमिनेंस का जो पार्ट है ये इन्फंडिबुलर स्टेम है यहां पर। ये यहां पर पारस नर्वोसा ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस मेन रीजन है ये, और यहां पर हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, जो इसके द्वारा हार्मोन आते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल के जो न्यूक्लियाई है, कौन सी न्यूक्लियाई? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, वो यहां पर ये हार्मोन रिलीज करते हैं। दूसरे टाइप के यहां जो न्यूक्लियाई है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो शॉर्ट न्यूक्लियाई है, ये एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, पार्स डिस्टिडिस पार्ट ऑफ द एडेनोहाइपोफाइसिस, और ये ऊपर है पारस ट्यूबुलरिस पार्ट। और यहां से बच्चों ये क्या है? रिलीजिंग फैक्टर है, और रिलीज करेंगे किसके द्वारा? हाइपोफाइशियल पोर्टल वैन के द्वारा रिलीज करते हैं, और इसके अंदर यहाँ स्टोर किए जाते हैं। और जरूरत पड़ने पर दोनों ही यहाँ देखिएगा, ये आरएफ आईएफ सीक्रेट करने से यहाँ एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, ये हार्मोन बाहर निकलते हैं किसके द्वारा? वीनस ड्रेनेज के द्वारा, वैन के द्वारा ये बाहर निकलेंगे और बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। तो ये एक यहाँ पोजीशन बताई गई है।
तो ये बात आपके बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि कैसे तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे और वहां से फिर बाहर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। इस टाइप की एक स्ट्रक्चर यहां बताने का प्रयास किया है। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन collect the blood from the hypothalamus and supply to the pituitary gland. Which part? Adenohypophysis region, ध्यान रखें। Then various type of hormone secreted by the various type of cells. अब कौन कौन से हार्मोन यहां पर रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो हम यहां पर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं यहां तक आई होप यू आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देन वेरियस टाइप ऑफ hormone released by the secreted by the hypothalamus into the pituitary gland. We have discussed about it, but various type of structure of the pituitary gland we have also discussed about it, and various type of cells, acidophil cell, basophil cell and chromophore cells are found in the adenohypophysis of pituitary gland. That type of cells secrete many hormones, and these hormones drain into the venous drainage या vein of the pituitary gland. That type of hormone, which are a hormone, mix into the blood and circulate all body parts and appropriate target cells. वहां पर जाके ये फंक्शन करेंगे। कैसे फंक्शन करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन स्टोरेज इन द न्यूरोहाइपोफाइसिस, बट डज नॉट सिंथेसिस एनी टाइप ऑफ हार्मोन बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, बट मेनी टाइप ऑफ हार्मोन सिंथेसिस बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हार्मोन बच्चों हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर के दौरान यहां पर करेंगे। यहां तक स्ट्रक्चरली पार्ट है। आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड, यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर knowledge and confidence. Thank you so much.